Hi guys. So firstly, I really hope that you are seeing this or watching this video in the best of your physical and mental health because that is the most important freaking thing in the world to do. But I think I have been pretty irregular and of course seeing the number of subscribers I have and it definitely shows कि मैं उतना active मेरे since I'm into a full-time job now after my graduation. So I just graduated abhi yaar, बस एक महीने पहले. So don't treat me like a दीदी or so. I'm just like a florist. So never mind. So the only problem here is कि I was getting so many of queries in regards to कि कैसे level 1 के लिए preparation since it's last 1 month thing until our August window opens for the level 1 exam. I just have some strategies to share in a form of a deck I just prepared. Like उसमें कुछ आपको fancy and बहुत repetitive and कहानियां नहीं मिलेगी. Straight cut to the point. Something that I personally felt that it really helped me because to be really honest with you guys, I had limited time frame. मैंने also I have completed my FRM also. The ones who don't know, I would love to make videos on that particular course. I pursued the fire commerce only in my school. Like I opted for commerce. तो उस फील्ड में प्राइमरली लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स ही मतलब वेल नोन तो है ही लेकिन साथ में they just can't like still figure out कि there are a number of other options also where you can say have a great career start and something different and something interesting, something which is on a growing stage and all. You can go if you were just into number crunching analysis and in-depth practical knowledge. This is one such domain which is FRM. Someday, maybe in future, I would love to talk more about it and related stuff. How the hell I ended up choosing that. The reason I'm saying is क्योंकि मेरा background FRM का थोड़ा tough माना जाता है in comparison to CFA's curriculum because दोनों थोड़ा overlap करते हैं when it comes to financial domain. But FRM is on risk and as we know CFA is on investment valuations end. But ये वीडियो कहानियों के लिए नहीं है. I'm really sorry. बहुत मैंने बोल देती हूँ. I don't have anything पहले से prepared कि क्या बोलना चाहिए. बस बोल देती हूँ. Though I have the PPT which I'll be just like walking you through and then you can just have a look over it as well. ताकि आपको एक आइडिया लग पाए कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स आई रियली वांट यू गाइस टू वर्क अपॉन. क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट मंथ का ही स्ट्रैटेजी होता है. नो मैटर आपने पूरे साल पढ़ लिया या इतना ज्यादा जरूरत से ज्यादा टाइम भी जरूरी नहीं होता. और भी जैसे मेरा दिसंबर में आई हैड माय फिफ्थ सेम एग्जाम सो आई एग्जैक्टली हैड 1 month इन माय हैंड. आई डिडंट गो टू कॉलेज अंटिल माय एग्जाम वाज ओवर. तो मैं अपना पहला दिन सिक्स सेम का मेरे कॉलेज खुल गए थे सेकेंड वीक ऑफ जैन में. But I went to college straight after a month. Like on 21st of Feb, my exam was there scheduled, and on 22nd, I was there in the college. So that's how you need to just, hold on to commitments and your rigorous attitude to just ace it in a go. And not clearing it is really not a choice. You don't have it, so don't even think about it. And इतना difficult नहीं है यार. देखो MCQ पैटर्न पे है, थोड़ा प्रैक्टिकल चीजों पे एक चीज को अच्छे से पढ़ोगे इतनी ज्यादा ना लंबे लंबे पैराग्राफ्स के फॉर्म में नहीं होता. स्ट्रेट क्लियर कट क्वेश्चंस होते हैं एंड यू कैन जस्ट इफ यू रीड इट ट्वाइस यू विल गेट द हैंग ऑफ इट कि ओके all this it is all what I've studied. It's just like out of nervousness and seeing the environment I'm getting the feeling कि मेरे को कुछ नहीं आ रहा है जो ऐसा नहीं होता. सेम आपने जो पढ़ा वही है वो सब. सो मैंने कभी देखा नहीं क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लॉन्ग फॉर्म आ रहे हैं एटलीस्ट ऑन लेवल 1 में. क्योंकि एक वो भी हो जाता है ना इट स्ट्रेन्स योर आईज एंड जस्ट कंटिन्यूअसली इतना जितना पढ़ते हो वो रिटेन नहीं हो पाता. बट एक चीज अच्छी है कि इसमें सारा आपका options based like options in the sense MCQ pattern पे है so you don't have to like really think on the subjective matter कि what you need to write and so. But obviously ये बहुत ज्यादा practical oriented है and something I don't know कि BCom honors मेरा background है तो उस वजह से मुझे कहीं कहीं edge मिली कुछ subjects में. So definitely it varies from person to person. I would love to just hear around these stories from different walks of background professionally जो ये कोर्स परस्यू कर रहे हैं. बट मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मैंने टाइम उतना कुछ खास दिया नहीं. आई रजिस्टर्ड ऑन स्टैंडर्ड फीस. या दैट वाज द बिगेस्ट रिस्क दैट आई टुक. एंड या आई मीन क्योंकि अगस्त में मैंने पेपर दिया था एफआरएम का एंड देन ऑन इट लाइक I think we're just deviating off the topic, so we'll just save it for some other day. But today's topic is to walk you through the strategy that is most important. So I'll just share my screen and we'll let you know how the hell I prepared that helped me land up securing 90 plus percentile across all, like 90 plus percentile overall and 70 plus across all subjects. Just hold on to a second. I'll just share. Just let me know if it's visible.
आई थिंक आई कैन स्टॉप दिस स्क्रीन शेयर जस्ट अ सेकेंड। देखा है, मेरे को आदत नहीं है, ठीक है, तो मैं कोई एडिटर वेडिटर नहीं है मेरे पास, सब खुद ही करना पड़ता है इस बच्ची को। So, थोड़ा सा वेट कर लो, 1 मिनट बस, जस्ट 1 सेकेंड। या सो आई थिंक it's visible. Yeah. So the only thing I have in course to say is कि ये तो थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं। लाइक कभी कभी होता है कि हम इतना ज्यादा ओवरलोड हो जाते हैं, इतनी स्टडी रिसोर्सेज हर जगह से आ रहे हैं, अपने दोस्त यार, अपने स्टूडेंट ग्रुप्स पे, कोचिंग में, इफ यू हैव एनरोल्ड योरसेल्फ, सो इट रियली बिकम्स अ सुपर स्ट्रेसफुल एंड इंट्रीगिंग थिंग कि हमें लगता है कि सभी करने से मार्क्स का श्योरिटी का लेवल हाई होता है। ऐसा नहीं है। यू नो कि आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग एंड देन देयर इज नथिंग यू नो एज सच कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं तभी आप कर सकते हो। तो दिस इज वन एग्जाम्पल। मैंने मुश्किल से 5 दिए होंगे, वो भी इसीलिए क्योंकि मैंने बहुत एंड टाइम पे इसका पढ़ाई स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड अराउंड इन सितंबर अक्टूबर फॉर द फेब अटेम्प्ट। वो भी दिसंबर तो आप भूल ही जाओ, काउंट ही मत करो, क्योंकि कॉलेज का भी कुछ नहीं पढ़ा था, तो उसके एग्जाम्स फिर लेक्चर्स अटेंड। सो वही चीज होती है, इट्स जस्ट द 1 मंथ दैट यू जस्ट रिगरसली 8 to 9 आवर्स खींचो आराम से, कोई दुनिया से थोड़ा दूर होके, के इतना कुछ रखा नहीं यार, इंस्टा कहीं नहीं जा रहा, रील्स कहीं नहीं जा रही, वो ट्रेंड आते जाते रहेंगे, ये एग्जाम नहीं आना चाहिए दोबारा, वन शॉट क्लियर कट हो जाना चाहिए सबका। तो हो गया ही वैसे तो, बिकॉज आई नो कि इतना उस लेवल पे नहीं भी डिफिकल्टी है अभी, but it's more on the conceptual part that they test you. So I really love the entire vibe over there. I would really love to make a video someday later, but abhi, since we are talking about mocks and mocks, मतलब 1 month आते ही we think about कि okay, let's now hop on to the mocks and all. बहुत ही क्लियर कट इसमें अप्रोच रखो, कोई जरूरत नहीं है 10-12 पुराने सालों के करे जा रहे हो, पूरा ओवरलोड कर लिया अपने आप को, क्योंकि देखो यार, व्हेन इट वाज द टाइम फॉर यू टू प्रैक्टिस थ्रू द कंपनी थ्रू द इंस्टीट्यूट्स पोर्टल, राइट, उसमें ऑलरेडी 2000 प्लस क्वेश्चंस का पूरा सेट है, इट्स होलिस्टिकली कवरिंग ईच एंड एवरी कंसेप्ट। सो बार बार इतना ज्यादा ओवरलोड करके कि आप कंसेप्ट भूल के बस क्वेश्चन का आंसर माइंड में रह जाए, वो चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन देखा, आंख बंद करके बस कर रहे हो, वो आ जाता है फिर, दैट इज अ डेंजर जोन। सो जस्ट नेवर डू दैट। एंड आई वुड से कि जैसे यहाँ पर यू कैन सी सॉल्ट फ्री मॉक, इसमें पेड भी होता है, इसका लेवल आई रियली लाइक द वे इट वाज स्ट्रक्चर, एंड मतलब मुझे मैनुअली जरूरत नहीं पड़ी कैलकुलेट करने की। इट वाज सेम ऑन द लाइंस ऑफ लाइक कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्टिंग, मैंने टाइमर वाज देयर, इट वाज शोइंग, एंड द मोमेंट आई फिनिश माई टेस्ट उसने मेरे को इवेल्युएट करके स्कोर दे दिया। इतना कुछ अच्छा नहीं आया था मेरा, 65 to 70 के रेंज में, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, बट या इट वाज इतना ही था आई थिंक। या देन इंस्टीट्यूट मॉक्स आई वुड से कि बहुत ज्यादा लाइक इट्स अ बाइबल ऑब्वियसली, मतलब दैट इज द रीजन सीएफ इंस्टीट्यूट आस्क्स यू टू फोकस एक्सक्लूसिवली, नॉट एक्सक्लूसिवली बट वी कैन मेजरली ऑन द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वो उन्हीं लाइंस पे टेस्ट करेंगे। तो जैसे देख सकते हो कि 2 उनके फुल सॉल्व आप कर सकते हो मॉक्स, जो आप फीस पे करते हो उसमें आपको इंक्लूडेड होता है, उसके लिए नो एक्स्ट्रा चार्ज। लाइक इस साल से और पैसे जो खर्चे हो ही जा रहे 1.5-2 लाख भी कम, 1.5 लाख भी कम पड़ रहे हैं इन्हें, कि उसके भी 30-40 हजार और एक्स्ट्रा दो, प्रैक्टिस पैक खरीदो, ये वो, इट जस्ट फील्स लाइक अनरियल, अनजस्टिफाइड आई थिंक प्राइजेस फॉर रियल। आई डोंट नो व्हाट टू से एंड हाउ टू फिगर इट आउट, बट बस वही 5 मॉक्स का जो स्टडी ग्रुप्स एंड सोर्सेस से था, सो आई जस्ट ब्राउज थ्रू, आई कुडंट सॉल्व इट बिकॉज ऑब्वियसली आई डिडंट हैव द एक्सेस, जो उसका पोर्टल पे था, प्रैक्टिस पोर्टल पे, तो उसके लाइंस पे क्वेश्चंस एंड इंस्टीट्यूट के पुराने year के एथिक्स के मैंने प्रॉपर सॉल्व करे हैं क्वेश्चंस, लाइक स्पेशली स्टैंडर्ड्स रिलेटेड, क्योंकि आपको कभी लगता है सभी मॉरल वैल्यूज को मतलब दर्शा रहा है, तो यही होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो वो ये थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस तभी आप आइडेंटिफाई कर पाते हो व्हेन यू थ्रू विद द रीडिंग। ओके, लाइक स्क्वाइजर की मैं बात करूँ तो उसमें जो टेक वर्डिंग्स हैं वो बहुत इन लाइन विद व्हाट द सीएफ इंस्टीट्यूट की बुक्स हैं, वो लिखते हैं, तो वो और ज्यादा थोड़ी एग्जॉस्टिव होती है, तो मैंने तो वो फॉलो नहीं करी, आई फॉलोड स्पाइसर ओनली, बट आई डिडंट डू एनी ऑफ इट्स क्वेश्चन बैंक्स, आई टोटली स्टिक टू प्रैक्टिस पोर्टल थिंग्स। बट सिंस इन लास्ट मंथ थिंग, तो ये तो अभी पॉइंट नहीं है इन सबका, तो जो पॉइंट्स थे वो मैंने लिख दिए, यहाँ उसकी लिंक है सॉल्व फ्री मॉक की, स्ट्रेट अवे इफ यू जस्ट क्लिक ऑन इट, इट विल टेक यू टू द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन रजिस्टर एंड जस्ट प्रॉपर देखो यार, मतलब या तो मॉक मत दो, और दे रहे हो तो बिल्कुल एग्जाम लाइक पैटर्न पे दो, मतलब फोन को तो छोड़ ही दो, मतलब अलग दुनिया में छोड़ा उसे, silent DND, airplane, switch off, whatever. Just keep it away from your side, right?
एंड वो टाइम पे आप अपने सामने एंड एक खाली, भाई मैं नहीं बोल रही कि पूरा आलीशान एक अपना रूम हो नहीं हो, फिर अभी मेरे को फिर बोलेंगे कि रूम नहीं होता ये, एक सीधी सादी जगह, एक टेबल चेयर लेके बैठ जाओ कोने में, मतलब कोई जनरली लोग की आदत होती है बेड पे ऐसे तकिया रख के फिर उसमें जो टेबल आती है फोल्डिंग वाली उसमें करना। तो अब वो चॉइस टू आपके कंफर्ट पे भी है, बट ऐसा करो कि फोकस डेविएट ना हो कहीं भी दो, लेकिन वो घंटे जो आप इस पे डिनोट कर रहे हो बोथ मॉर्निंग एंड आफ्टरनून का जो सेशन होता है, सो टोटल जो आपका 4 hours 30 minutes, तो जस्ट थिंक ऑफ इट इज लाइक कि बिल्कुल उसमें आप कट ऑफ हो वर्ल्ड के, बिल्कुल कोई काम घर का है ये वो इट कैन वेट, ओके, बट दिस एग्जाम वॉन्ट वेट फॉर यू। तो अब थोड़ा टाइम निकालना पड़ना चाहिए आप लोग को। सो आई थिंक उसके लिए एक बहुत स्टूडियस इन्वायरमेंट, मतलब शोर शराबे से दूर थोड़ा, या तो ट्राई करो अगर आपके घर में पेरेंट्स वर्किंग है, सो लाइक इन माय केस, सो मेरे पास तो पूरा हफ्ता ही रहता था कि पूरे घर पे ही शांति होती थी। लेकिन इफ यू हैव सिबलिंग्स और सो यू कैन एडजस्ट एंड जस्ट फाइंड टाइम, बिकॉज वो एक बार वो सीरियसनेस आ जाए ना, तो ये मतलब गारंटी रिजल्ट की तरफ और आगे कदम है इसके। वरना ऐसे इजी गोइंग एटीट्यूड के साथ रहोगे, आधा भी कर लिया, आधा सो के उठ के खाना खा के फिर दूसरा सेशन करोगे, ऐसे नहीं होता। सो वो आपका ड्राइव भी फिर चली जाती है काम करने की, एंड देन फिर वो इट डजंट वर्क आउट द एग्जैक्ट वे, राइट। तो ये तो ऐसे ही था। सो इसको ऐसा कि आई फाउंड इट इजी बट समथिंग दैट वुड सॉलिडिफाई योर कॉन्सेप्ट्स। सो दो नहीं तो एक ही कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन है, एंड फ्रॉम ईच चैप्टर मतलब क्या मेजरली देन शेड्यूल इज टेस्टिंग ओवर द टाइम। क्योंकि इसके भी आई थिंक प्रीवियस ईयर के थे, लेटेस्ट तो मुझे नहीं मिला था स्क्वाइजर भी ऐसे ही पूरा रिसोर्सेज बुक से मिला था, जो सारे स्टडी ग्रुप्स थे। तो मैंने हार्डली 5 किए या 4, मतलब डिलीजेंटली मैंने 4 5 किए, बाकी ऐसे ही ब्रश थ्रू मारा कि मतलब क्वेश्चन आ रहा है चलो माइंड में है उसका कंसेप्ट, सो आई एम गुड टू गो। हाँ ये थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप है एक्चुअली, टू जस्ट सेल्फ इवेल्युएट कि मैं कहाँ कितने पानी में हूँ बेसिकली। आई मीन आई नो पीपल विल बी लाइक कि एग्जाम में हमें बाइफिकेशन नहीं मिलता, ये सब्जेक्ट एथिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं या इससे आ रहे हैं, लेकिन हमें तो पता है ना 5 कौन से सब्जेक्ट है जिसका फर्स्ट सेशन में होना है, और बचे 5 कौन से जिसका आफ्टरनून के सेशन में होना है, लाइक द सेकंड सेशन में होना है। तो why not to just मतलब prepare our mind accordingly and just do the same way as we would do on the exam day। जैसे इसमें यू कैन सी कि प्राइमरली मैंने देखा कि स्टार्टिंग में आई मेस्ड अप लाइक बहुत ज्यादा, आई थिंक क्वांट्स में स्टार्टिंग में आई वाज हैविंग अ गुड होल्ड, बट आई थिंक कि कोई तो था, आई थिंक एथिक्स वाज लाइक माय वीक पोर्शन टू वर्क अपॉन। सो ये मैंने थोड़ी राइटिंग को, यार प्लीज एक्सक्यूज, आई नो इट मतलब इससे ज्यादा बुरी नहीं हो सकती। सो अगर किसी को गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मुझे मेरा नाम रजिस्टर कराना है टू कॉन्टैक्ट फॉर द वर्स्ट राइटिंग, आई वुड गेट द अवार्ड, कहीं तो मिलेगा। सो यही है बस। तो इट वुड जस्ट गिव यू फेयर आइडिया, लाइक आप ये देख सकते हो एथिक्स में 18 क्वेश्चंस थे, जिसमें से मेरे 12 सही थे। तो फिर मैंने देखा कि क्यों मैं इतना कंफ्यूज हो रही हूँ, ये तो बहुत थ्योरी एंड समथिंग यू डोंट हैव टू अप्लाई मच ऑफ योर माइंड, लाइक बट द कैच इज कि यहीं पर सबसे ज्यादा माइंड है। वही मैंने देखा कि यार मुझे सब मॉरल वैल्यूज पे लग रहा है, देन आई फाउंड की नई डिस्टिंक्शन बिटवीन ये स्टैंडर्ड में ज्यादा अच्छे से अप्रोप्रिएटली इट इज फिटिंग, सो आई वुड चूज दैट ओवर द अदर, राइट। सो थोड़ा बहुत वहीं मैंने अपने आप को देखा कि मतलब यू नो टू वर्क अपॉन अंटिल माई एग्जाम डे। सो जस्ट गिव्स यू एन आइडिया, ताकि एग्जाम में पूरे जम्बल्ड क्वेश्चंस आए, कोई आपको लिख के नहीं देगा ये इसका क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन है, यू वुड गेट कंफ्यूज कि ये कॉर्पोरेट शोज का क्वेश्चन है या इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स का, कभी कुछ क्वेश्चंस ओवरलैप, कभी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के, कभी कुछ लग जाएगा। तो दिस इज द बेस्ट अप्रोच कि आप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट क्लियर कर रहे हो कि कितना आपको आ रहा है नहीं आ रहा। क्योंकि एक चीज अच्छी है कि आपका अगर ओवरऑल 90 अप करना है, सो किसी सब्जेक्ट्स में तो ओवरऑल लाइक सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट तो करना ही होगा, एंड मोर और लेस इज नॉट अबाउट मार्क्स यार। आपको नहीं चाहिए कि आप हर एक कंसेप्ट पर, मतलब हर एक सब्जेक्ट पे एक सॉलिड कमांड एक पा पाओ। अभी भी बहुत अच्छा खासा टाइम है यार, ऐसा कुछ वो नहीं है, आराम से यू कैन एस इट। तो वो ये ज्यादा देखो कुछ मेहनत का काम नहीं है, 4 हेडिंग बनानी है अच्छे से, बस टक टक एंड बस फर्स्ट का इतना उसका इतना। क्योंकि स्क्वाइजर में तो ऑब्वियसली यू डोंट हैव दी प्रॉपर पोर्टल, तो ये मैंने एग्जांपल ही दिया है कि स्क्वाइजर का जो मैंने किया था उसमें प्रॉपर मैंने क्योंकि वो तो कंप्यूटराइज नहीं होता, बस क्वेश्चंस होते हैं उस पे लैपटॉप पे, एंड आप मार्क कर रहे हो टू रीचेक है। तो दिस इज वन डिफरेंट वे आई फाउंड, जो अभी तक मुझे मतलब मैंने ही बना के अपना कर रही थी,
क्योंकि इवन दो आई वाज एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट, बट मैंने पूरी जनवरी सेल्फ स्टडी किया। आई डेंट वॉच एनी ऑफ दी प्रैक्टिस लेक्चर्स और थिंग्स लाइक सच। पूरा मेरे ऊपर था ये पढ़ाई का। And then I think this is some key pointers from my experience, obviously varying from person to person, as I already mentioned in the beginning. आपका background, आपका work, अगर आप already working है, आपको कुछ subjects तो बिल्कुल मतलब ऐसे ही प्यार से निकल जाएंगे। आप क्या ही मैं बताऊँ, like if we talk about relative valuation, DCF और डिविडेंड डिस्काउंट, जितने भी ये सब है, तो उसमें आपको एक एज है कि वो आपने प्रैक्टिकली करा है। सो वो जो बच्चों मतलब ये रिस्क होता है, CAPM, ये मतलब बहुत बेसिक बेसिक चीज, तो वो तो यार मतलब हो ही जाता है आने के लिए। बट थोड़ा आई थिंक ऑप्शंस एंड डेरिवेटिव्स इज लाइक ऑलवेज बीन माय प्राइम इंटरेस्ट। सो वो चीजें देख लेना जरा कि कैसे यूल बी वर्किंग आउट, एक्सचेंज रेट पे क्वेश्चंस, कन्वर्टिंग करेंसी फ्रॉम दिस टू दिस, क्रॉस करेंसी, आई लव दोस। लाइक आई एम जस्ट गेटिंग अ फ्लैशबैक ऑफ द एग्जाम डे। लाइक वो मैं क्वेश्चन कभी नहीं भूल सकती जब मेरे को बिल्कुल नहीं आ रहा था, ना लाइक क्या चाइनीज आ गई भाई। आई लिटरली फ्लैग्ड इट एंड जस्ट मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड अंटिल आई वाज लाइक अबाउट टू जस्ट सबमिट इट, तो फिर क्लिक किया यार, क्वांट्स तो वैसे ही मतलब न्यूमेरिकल्स तो वैसे ही कम आ रहे हैं, एंड मतलब मैं तो इतनी कॉन्फिडेंट थी कि मुझे तो आता ही है, सो उसमें मैं कैसे स्किप कर सकती हूँ, वो भी न्यूमेरिकल, एंड वो भी जानते हुए कि मैंने FRM का किया हुआ है। सो मैं किसी को बोलती नहीं, बट फिर खुद को लगा, फिर मैंने रीड किया क्वेश्चन को, समझा कि अरे ये चीज थी, ये तो आती है। दैट इज द थिंग आई एम टेलिंग ना, कि यू नो इट, इट्स जस्ट कि वो टाइम थोड़ा ऐसे एम्बियंस हो जाता है ना, कि यू स्टार्ट जजिंग कि लोग जो आपके वहां है वो सबसे बेस्ट है, बट इट्स द ऑपोजिट। तो ब्रश अप ऑन कंसेस, हाँ, तो ये सब देख लेना, इतना कुछ वो नहीं है। इट्स जस्ट लाइक समथिंग दैट हेल्प मी इंस्टेड ऑफ मतलब वॉचिंग द ज्ञानी वीडियोस, जो 1-2 घंटे तक, 1-2-3 वीडियोस उनकी मोटिवेशन पे ही होगी, एंड रियल काम की बात हुई नहीं। तो इससे आगे बढ़ते हैं। एंड यार देखो, ये सब एक्स्ट्रा चीजों के लिए बहुत टाइम है। आई नो कि बहुत लोग बहुत इन डेप्थ पढ़ने लग जाते हैं चीजें से। मैं अगर मेरे को कोई मॉडल समझ नहीं आ रही, रिलेटिव वैल्यूएशन मेरे को समझ ही नहीं आ रही है क्या हो रही है, तो फिर मैं जैसे बहुत कंपनीज का अवेलेबल है ऑनलाइन उसकी रिपोर्ट्स एंड ऑल, थ्रू विच यू कैन गेट एन आइडिया कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग अबाउट, लाइक उसकी ऑडिटर्स रिपोर्ट हो गई या कुछ भी, टू इवेल्युएट की ओपिनियंस कैसे फॉर्म होते हैं, कुछ भी। अभी वो टाइम एक्चुअली में नहीं है। देखो उसके बाद आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम होगा इन योर ऑफ टाइम, वीकेंड्स, गिव इट अ रीड। हार्डली इट वुड टेक अराउंड लाइक एन आवर और सो इन द मॉर्निंग में टाइम निकाल के पढ़ लो, या एक्सेल बना लो, रात को बैठ जाओ, जो भी आपको उसमें नंबर क्रंचिंग करके चीजों को एक्स्ट्रा लेवल पे समझना है। अभी जस्ट डोंट डेविएट योरसेल्फ फ्रॉम द व्हाट इज बीन टॉट इन द, लाइक व्हाट इज देयर इन द करिकुलम। तो सोली स्टिक टू it, क्योंकि जब तक आप एग्जाम की लैंग्वेज उसकी लाइंस पे नहीं पढ़ने लग जाते एंड उसकी लाइंस पे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हो जाते, एग्जाम डे पे यू विल बी मेसिंग इट अप, आई एम टेलिंग यू। इवन दो यू होल्ड अ डेजिग्नेशन, लाइक a reputable designation at an MNC, IB, NBFC, FI or whatever, wherever, बट स्टिल ये चीजें होती हैं कि प्रैक्टिकल एंड ये थोड़ा सा बहुत वाइड डिफरेंस होती है चीजों में, जो पढ़ रहे हैं एंड रियलिटी में भी गेट टू नो कि यार ये चीज ऐसे नहीं है असल में। बट सिंस इट्स कोर्स एंड इट्स समथिंग दैट इज देयर, एंड फॉर द सेक ऑफ इट वी नीड टू एक्सेप्ट इट, कि हर चीज प्रैक्टिकल थ्योरी एकदम से लिंक नहीं की जा सकती हर टाइम, कि हम हर टाइम क्वेश्चन ही करते रहें। उसके लिए आराम से यू हैव द एक्सपोजर एंड टाइम टू गेन नॉलेज। सो वो आप एग्जाम के बाद के लिए बचा लेना। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अगर आपने बहुत अच्छे से प्लान रिविजन करी है तो आपका सिलेबस ओवर हो ही गया होगा, और साथ में आपने एक्स्ट्रा नॉलेज भी गेन करी होगी, मे बी थ्रू इंस्टीट्यूट, और अगर आप सेल्फ भी करें तब भी आराम से निकल जाता है, ना कुछ वो नहीं है। I was the student, so I was having that momentum of studying and all, तो coaching and all का हो ही गया। otherwise तो फिर यार पैसे भी इतने थे, so risk भी। And तो yeah, and yeah, this was something I wanted to talk about, कि जैसे प्रैक्टिस पोर्टल के क्वेश्चंस में कुछ कुछ होते हैं जो आपको लगते हैं कि आई शुड री रिवाइज इट, उसे फ्लैग कर लो या उसे कहीं लिख लो, या नोट पैड में एक पिक्चर लेके फोन में रख लो, ताकि टुवर्ड्स द एंड यू जस्ट गेट टू रिवाइज। आई मीन ऑब्वियसली इफ यू रिवाइज द एंटायर सेट ऑफ इट, इट वुड बी लाइक कि एक नोटबुक में मैम ने क्वेश्चंस दिए थे एग्जाम के पहले, वो पढ़ लिए एंड वही आ गए। इतनी नैरो लेवल का नहीं होता एग्जाम, इट्स जस्ट लाइक होलिस्टिक, पूरा चेक होता है। सो जस्ट डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू प्रैक्टिस पोर्टल क्वेश्चंस। फिर वो लगेगा आपको क्वेश्चन आता है, ये तो लर्न किया हुआ आंसर है, जैसे A+B=C या जो भी है यार, मतलब तो फिर वो आपको पता ही है, उसके पीछे का लॉजिक आप भूल जाते हो, या आपको फर्क भी नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, वो आंसर उसमें सही आया था, तो यहाँ पे भी अगर मैं वो क्लिक करूंगी तो सही ही आएगा, वैसा नहीं। तो इसलिए हम सेइंग ओनली द की वंस। कुछ कुछ हर सब्जेक्ट में होते हैं कि जो आपको लगते हैं कि यार वो टेक्निकल था, मतलब थ्योरी ओरिएंटेड था, सो यू आर नॉट दैट श्योर और यू कैन डिबेट मच अबाउट इट, इट्स सब्जेक्टिव।
तो वो कुछ कुछ सही आंसर्स होते हैं जो आपको आपके रैशनल माइंडसेट से मेल नहीं खाते, बट स्टिल यू नीड टू एग्री टू इट। सो वो एक क्वेश्चन था वैसा कि एक आई थिंक गवर्नमेंट का कोई चैप्टर था, गवर्नमेंट रिलेटेड पॉलिसीज एंड समथिंग। तो वो मुझे बहुत बार, मैंने एक बार तो बहुत ही लो स्कोर किया था जब मेरा प्रैक्टिस पोर्टल पे था। सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई लाइक ड्यूरिंग माई प्रेप डेज ओनली मुझे याद था कि मैंने नोट किया था, क्योंकि कि वो मुझे दोबारा चैप्टर करना है। तो मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस उस टाइम भी मुझे इतने क्लिक नहीं हुए कि यार ये क्यों, मतलब ये नहीं होना चाहिए ऐसा। तो बट ऑब्वियसली हर टाइम आप एग्जैक्टली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सब चीज के आंसर्स एक टाइम पे आपको क्लियर कट मिल जाए। टाइम के साथ साथ यू स्टार्ट रियलाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो वहां मैंने बस आंसर को देख के समझ गया था कि अगर ऐसा है तो यही होगा। लॉजिक बाद में हम समझेंगे अच्छे से, जबकि इतना कुछ था नहीं, सब्जेक्टिव ही था एज आई टोल्ड। तो वो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक उस टाइप के क्वेश्चंस देखना और एक न्यूमेरिकल्स का अप्रोच देखना। कि कहीं कहीं इफ व्हेन टॉक अबाउट इंटरेस्ट रेट्स, एफआरएस, वो पूरा आपका टर्म स्ट्रक्चर और इंटरेस्ट रेट्स, बूटस्ट्रैपिंग एंड ऑल, उस टाइप के न्यूमेरिकल्स इतने कॉम्प्लेक्स तो नहीं आते, लेकिन सिंस इट्स देयर आई थिंक थोड़ा बहुत कवर करना इज नॉट बैड आई थिंक। अगर इवन इफ प्रैक्टिस पोर्टल में भी आई सॉ सम ऑफ द क्वेश्चंस बहुत अच्छे से थे। सो डू प्रैक्टिस देम। एंड सिलेक्टिव वो नहीं चलेगा कि पिछले साल ये आया था तो इस साल नहीं आएगा, ये इस साल आया था तो अगले साल भी आने का बहुत गुंजाइश है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है। वो सब नहीं, वो अच्छा ही लगता है मीम्स की वीडियोस के थ्रू ही हंसना, क्योंकि रियल लाइफ में नहीं। जस्ट डोंट जस्ट डोंट डू सिलेक्टिव स्टडिंग एट ऑल। एंड आई थिंक करेगा भी नहीं, है मैंने ऐसे ही थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिया था कि ताकि बिल्कुल मतलब बोलते ऐसे जैसे सब बिल्कुल सुन लेंगे। बट या यार ये हेल्प करता है, क्या फायदा इतने स्ट्रेस लेके आप थोड़ा बहुत अपना एंड टाइम पे थोड़ा ज्यादा काम चोरी करके कुछ नंबरों से नहीं हो पाती चीजें आपके फेवर में। इट्स बेटर कि एक बारी में घिस के पढ़ लो अपना मस्त मौला, फिर घूमो फिरो एंड आगे के लिए करियर और ही सुहाना है फिर। सो या दैट इज द थिंग। एंड कुछ भी मत रखना है लास्ट डे फॉर द एग्जाम। ये मैं पहले भी बोल मतलब आज ही बोल रही हूँ, वैसे तो एक पहली वीडियो मेरी इस टाइप की। जैसे कि होता है हमारे को कि यार लास्ट डे पे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी रिटेंशन होगी। होता है वो एग्जाम एंड स्कूल कॉलेज तक ठीक है, लेकिन ऐसे एग्जाम्स में इट्स लाइक कि इट वुड जस्ट लो डाउन योर कॉन्फिडेंस एंड जो आती हुई चीजें बिगड़ जाती हैं। इतनी अर्ली मॉर्निंग टाइम स्लॉट रहता है, आपके पास चॉइस भी नहीं होती, उठो दूर सेंटर्स होते हैं उस टाइम पे। जस्ट इंश्योर यू हैव इनफ लाइक प्रॉपर फिलिंग, अच्छे से खा के जा रहे हो घर का खाना। एंड फिर जो सेशन होता है यू कैन जस्ट हैव लाइक मेड अ फ्रूट चाट और सो लाइक, तो टू फील रिफ्रेश्ड और सो लाइक। मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, जो सेशन मिला था हमें 15 मिनट का ब्रेक टाइम आउट करके, सो मैं तो ऐसे ही खा रही थी। एवरीवन इज लाइक रिवाइजिंग ऑफ द नोट्स इन द लॉकर जो अलॉटेड हमें रूम था। मैं ऐसी देख रही शक्लें, क्योंकि वी आर नॉट अलाउड टू डिस्कस अ पेपर एंड समथिंग एनीथिंग रिलेटेड टू इट। सो सब अपने साइलेंटली कर रहे हैं, तो मेरे लिए थोड़ा अनयूजुअल एक्सपीरियंस था कि चलो यार आई एम रियली सॉरी, लेट्स जस्ट सेव इट फॉर सम अदर डे, आज नहीं करते। सो एज आई सेड कि या सो दिस इज प्रीटी मच इट। आई थिंक वही है कि लास्ट डे पे प्राइमरली जो फॉर्मूला शीट आप मेंटेन कर रहे हो, या कुछ कुछ मिस्टेक्स जो आपको कभी क्लिक नहीं हो पाती हैं, कितना डेज लेना है होल्डिंग पीरियड में यानी कैलकुलेटिंग बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड, तो ये डेज में 360 365 को मेजर कंफ्यूजन रहता है। तो उसके कहीं आपने नोट पैड में नोट किया है, या कुछ स्पेसिफिक अप्रोच कुछ चीज को डील करने के लिए, कुछ भी एक मिस्टेक शीट या स्टार्टिंग से या मेंटेनिंग सम की पॉइंटर्स, जस्ट गो थ्रू देम एंड जस्ट डोंट फॉरगेट इट। जिस दिन के लिए बनाई थी उस दिन के लिए तो यूज कर लो यार। तो वही है, वो देख लो एंड थोड़े बहुत फॉर्मूला, उससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं देखा लास्ट आई एम टेलिंग यू फॉर इट। मुझे नहीं याद, मैं लेक्चर तो वही 1 महीना हो गया था, मैंने कुछ नहीं देखा एंड ये भी कुछ नहीं देखा था, सिर्फ नॉर्मल यूजुअल स्टफ अपना। एंड देन आई थिंक इट्स या आई थिंक यही सभी थे नॉर्मल लगते हैं। ये सब आई डोंट या सो दीज ग्रुप्स आई फाउंड टू बी रियली हेल्पफुल। किसी किसी में जूस नोट्स फिनरी के थे अवेलेबल, किसी में स्क्वाइजर का मटी कुछ भी शॉर्टकट अच्छे से मतलब यू नो की पॉइंटर्स हर सब्जेक्ट के, इकोनॉमिक्स के कि किसमें क्या लेना है, एफिक्स फ्लोटिंग रेट, बहुत सारी कुछ की पॉइंटर्स वे द हाई लाइक विद दिस हाई प्रॉक्सिमिटी दैट यू माइट मिस ऑन दोस टेक्निकलिटीज एंड उसी पे टेस्ट हो। सो बहुत नोबल लोगों ने वो बनाए हुए हैं रिसोर्सेज एंड यू नो प्रॉपर अपने ही सेल्फ मेड लाइक रीडिंग मटेरियल। वो आपको हेल्प कर सकता है एथिक्स जैसे एग्जॉस्टिव, एफएसए जैसे थोड़े कॉम्प्लेक्स तो नहीं लेकिन टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट के लिए, लाइक अपना तुम्हारा डेफर्ड टैक्स एसेट लाइबिलिटी का कंसेप्ट एंड देन योर insolvent thing and depreciation portion, treatment of a particular item as a capital asset or like to just treat it as an asset or just charge it as an expense. So वो सब चीजें पूरा चार्ट्स एंड ऑल वो मैं तो कभी भूल ही नहीं सकती यार। वो एफएसए के वो 2 3
बहुत, तो यू विल फाइंड ऑल ऑफ इट ऑन दीज 3 ग्रुप्स प्राइमरली। मतलब मिक्स मैच देखो, ब्लेंड करके जरूरी नहीं पूरा ही देख के पागल हो जाओ। आई थिंक आप लोग इसमें से किसी ग्रुप में होगे भी ऑलरेडी, but since I found these resources super helpful during my last one trip, so I'm sharing this with you. And Fintry crash course मैंने ऐसे किया था कि देखो, मैंने इससे मॉक टेस्ट को हैम्पर नहीं किया था। मैंने हमेशा मॉक टेस्ट आई थिंक सेकंड वीक्स ऑफ लाइक फेब में ही स्टार्ट किया था। ऑब्वियसली ना, जनवरी तो पूरा मैं खुद पढ़ी थी अपना कंसेप्ट को और सॉलिडिफाई करके, ये मुझे अब पूरा क्लियर कट है उसकी थ्योरीज जो आपकी मतलब किनेशियन थ्योरी आपकी जितनी भी पूरी आपका पूरा मान लो सारे सब्जेक्ट्स को मैंने एक गो में फुल क्लियर कट पिक्चर में अपने सामने रखा कि ये उसमें ये चीज है, उसमें ये है, सो लाइक नोन टू द फैक्ट्स एंड व्हाट दैट सेज। सो वो सब चीजें थी। एंड उसके बाद तो आई थिंक मॉक्स ने कॉन्फिडेंस और थोड़ा बढ़ा ही दिया था। इतनी ज्यादा कुछ मेजर दिक्कतें नहीं थी, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम लो स्कोर तो नहीं आया था किसी में। सो स्टार्टिंग में आई थिंक सॉल्ट ही किया मैंने, मेरी मत मारी गई कि इतना थोड़ा डिफिकल्ट वाले उठा लिया, तो थोड़ा उसमें कम आया। बट देन आफ्टर डूइंग स्क्वाइजर कि ओके इट्स ऑन दिस लाइन। एंड देन इंस्टीट्यूट, सोली इंस्टीट्यूट, जैसे जैसे मेरा टाइम ज्यादा रहा मैं इंस्टीट्यूट पे स्टिक कर गई। पहले आलतू फालतू मतलब आलतू फालतू नहीं, थोड़े इधर उधर के रिसोर्सेज से जितना एक्स्ट्रा मतलब इंस्टीट्यूट के अलावा मैं पढ़ सकती थी, आई डिड। बट आई थिंक व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज अल्टीमेटली द बाइबल। जो उनके क्वेश्चंस है अपने सीएफए वाले, तो वही उन्हीं के लाइंस पे देंगे ऑब्वियसली। सो मैंने दोनों मॉक्स किए, दोनों में वन ऑफ देम आई स्कोर 71 71 ओवरऑल, एंड दोनों सेशंस में द अदर वन आई लाइक क्रॉस 80 दोनों में। सो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, उतना फर्क नहीं होता यार। वो थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि चलो मॉक्स लेवल पे यू आर एबल टू कवर होलिस्टिकली जो सिलेबस वगैरह है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस होता है कि एग्जाम में इतना तक तो हो ही जाएगा अपना, इतना क्या अपना अच्छा से जाएगा अगर आप ये थोड़ा बहुत फॉलो करो। एंड प्राइमरली हर चीज के अपने की पॉइंटर्स वही सुबह देख लेना, उसके बाद चिल थोड़ा एक दो अपने मनपसंद के गाने सुन के चले जाना, टेस्ट बढ़िया हो गई। ओके, सो आई थिंक ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुकी है। आई डोंट नो व्हाई, इट्स माय फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग इट इन दिस वे, सो आई हैव नो क्लू because I'm not able to see the timer. So I'm really sorry कि अगर वीडियो लंबी या छोटी तो नहीं लगोगे और लंबी होगी। So this cute little Pookie is wishing you good luck. So good luck guys. I will try to make another mock specific video जो मैंने follow की बाकी tests देने के लिए, and not just tests but other things also जिससे मैं side में practice करती थी। एंड वो शायद सीएफए रिगार्डिंग तो हो गई, लेकिन आप उससे सिर्फ सीएफए रिगार्डिंग एडवाइस ना लेके अपने नॉर्मल यूजुअल कोर्स ऑफ प्रोफेशनल एग्जाम्स के तौर पे ले सकते हो कि आप कैसे इवैल्यूएट करो अपना स्कोर एंड सेल्फ डिसिप्लिन कैसे आ पाए। तो वो मेरे कुछ जैसे है, तो आई वुड इफ you would want, I would definitely make one. But I'll also attach the link of this video, I mean this deck, so that all the useful links you can get access to those and just go through it once. And बाकी as I said subjective है, person to person vary करता है, इसे कुछ blindly follow मत करना। There is no clear cut 90% guaranteed strategy ever existing in the world. हर कोई अपना एक्सपीरियंस लेके आता है and अपनी यू नो नॉलेज ग्रास्पिंग पावर एंड अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। सो कोई बोल रहा है आप ये सब्जेक्ट पहले कर लो, ये कर लो, आप तब भी वही करोगे जो आपका मन होगा। सो वही करो ताकि एटलीस्ट वो पोर्शन तो कवर हो, एंड देन आफ्टर यू कैन जस्ट सी कि एट द एंड वो तो करना ही है कि 10 के 10 नहीं। बट तो उस हिसाब से अपना थोड़ा मॉडिफाई कर लो स्ट्रैटेजी जो मैंने लिखा, जस्ट गो थ्रू इट टू अंडरस्टैंड कि कैसे लाया जा सकता है, फिर उसके अकॉर्डिंग यू कैन मॉडिफाई योर्स, राइट। सो रियली सॉरी बहुत लंबी हो गई वीडियो, जस्ट लाइक wanted to shoot out this one to help you guys. And and कुछ अगर उल्टा पुल्टा बोलते एक्स्ट्रा तो बोलते मेरी आदत ही है। So please excuse me for that and I'm really sorry because मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कैसे ये सब शूट करते हैं and क्या कितना बोलना चाहिए। So I'll save that all for next one. So till then, yeah, keep practicing and YouTube से दूर रहे थोड़े दिन, फिर आ जाना कि मैं और वीडियोस डाल दूंगी। Till then, I give your exam and do share it with the ones with the peer group, with your CFA buddies, and the ones whom you feel might find this video useful. And I'll see you hopefully in the next one super soon. But till then, keep practicing and just ace this one. I'm strongly rooting for you. Bye bye. See you soon.